and Assalamu alaikum. Today at the CEO Lounge, we are welcoming a dynamic and a very prolific entrepreneur. Somebody who has nearly over 2 decades of rich expertise in areas of fashion retail, broadcast media, corporate administration, event management, and even technology consulting. Today, at the CEO Lounge, he joins us as the founder and the CEO of none other than Wearables, a very nationally acclaimed and famed brand that, in the due course of just a few years, has gained a lot of popularity and is known to deliver premium quality jewels, apparels, shoes, bags, and even accessories. This gentleman has also expanded his further portfolio by delving a little deeper into areas of administration and project management, ensuring that his command over his business expands in areas of operational excellence and strategic planning. Variables over the years has gained popularity now in European markets as well, where their aim and vision is to ensure expansion into the e-commerce sector and the physical retail markets. We enjoy their presence in all the high-end malls and shopping districts of Karachi and Punjab and Lahore in particular. Renowned for his operational leadership, strategic foresight, and customer centric approach, he has continued delivering quality and very sound results that have an impact, particularly while navigating the diverse and evolving industries. With a lot of honor, it is my pleasure to be speaking to the brain behind Wearables, the founder and CEO, Mr. Shaji Haidar. Assalamu alaikum, Mr. Shaji. Walaikum salam, Adila. Thank you so much for inviting and giving such a wonderful words for variables and myself. I'm No, it very is humbled. the Thank brand you. in itself. We know that when it comes to the kind of customer loyalty that you have Mashallah. maintained over the years, the and as a CEO, your responsibility is also towards generating a certain stream of revenue over the years. It's not easy. And any brand requires a lot of hard work. And personally, it is one of my personal favorite brands. Thank you. And the students, your voice is now going to reach out to a lot of business students that we have over here who are very inclined towards understanding the art of how to introduce a certain product or service to the market, how to conceptualize an idea, how to sort of diversify their own portfolio while understanding their own strengths and expertise, and yet at the same time maintain a premium quality stature in the market. It's not easy. So, my very first question to you will be, Mr. Shaji, what actually inspired you to come up with something which is as common in the market? Because jewels is something that is very commonly available and you have got a lot of competition. So there's a certain level of stagnancy also. And what were these expertise of running your own business always ingrained in you? This is something that the students would like to know. Oh, I hope it does, but it was not the case. Yeah. I come from very humble background, and Yes. as we were speaking before the Yes. podcast, Hmm. that doing a business was never a thought came in my mind. Be the like I told you that I had dreams of doing a good job, Yeah. not a business. Right.
So it started in 2016, the variables, but Yeah. my career started back in 2000. So Yeah. when I stepped in my professional life, Yes. I started with very basic entry level jobs and all that. And I landed up in a big IT firm, and that firm basically developed my skills in a Okay. way that I started taking risks because the students will listen this. What I see in business these days or overall in general, you should have passion for the product or whatever services you are doing. That passion drives you. And additionally, if you are able to take risks, the combination of both, Yeah. this can give you the desired results. Right. So I started doing some events and media thing, and so at that time I was thinking maybe I was taking too many risks on someone else's money. So maybe ये स्किल वहाँ से मुझे डेवलप हुआ. आई डोंट नो कि जी. शायद यही था पहले से था या वहाँ पे Right. मुझे लगा कि ज़्यादा डेवलप हुआ. उसमें अगर आप इस स्टार्ट कर देते हैं रिस्क लेना और जी. आपको ये पता चल जाता है तो फिर एट सर्टेन एज ऐसा हुआ मुझे फील हुआ कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम की ज़रूरत है. सिंस आई टोल्ड यू दैट आई वाज डूइंग जॉब एंड जॉब वाज गुड बट स्टिल यू नीड फाइनेंशियल फ्रीडम एट Yeah. सम एज. Yeah. तो हमारे दिमाग में आइडिया कैसे आया? इट वाज some of my friend, obviously, at that time, हम कुछ रिसर्च कर रहे थे since I came from a IT background थोड़ा सा. जी. तो all the ideas were related to IT enabled services or something. जी. बट जब भी हम आईटी को एट दैट टाइम हमें कुछ ऑब्वियसली कैश फ्लो इमीडिएटली हम चाहते थे कि डेवलप हो और साथ चले, तो फिर हमारे दिमाग में रिटेल की तरफ ध्यान आया. एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स सजेस्टेड मी कि हम रिटेल में वुमेन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स पे जाएं. तो ज्वेलरी वहाँ से बेसिकली आइडिया डेवलप हुआ ज्वेलरी का. एंड फिर खुद ही मैंने शुरू किया सर्च करना ज्वेलरी को. उस वक़्त पैशन डेवलप हुआ. मेरा कोई पैशन ज्वेलरी से रिलेटेड था नहीं, क्योंकि मुझे बिज़नेस करना था. मेरा बेइंतहा पैशन डेवलप हो गया ज्वेलरी से रिलेटेड. एंड टू द एक्सटेंट मेरा एक हेट लेवल था ज्वेलरी से इनिशियली. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता था. टू ये कन्वर्ट हुआ कुछ लव रिलेशन में विद ज्वेलरी कि मैं लोगों को ज्वेलरी पहने हुए देखता था एंड ऑकवर्डली आई वुड आस्क कि ये कहाँ से लिया और कैसे लिया? तो वो एक काफ़ी पैशन मेरा डेवलप हुआ. फिर मैंने काफ़ी रिसर्च किया एंड इट टुक मी अराउंड 2 टू 3 मंथ्स कि मैं बस रिसर्च ही करता रहता था. बहुत ज़्यादा मुझे कुछ पैशन इसका डेवलप. आई स्टार्टेड बाइंग स्टफ फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट सप्लायर. इनिशियली आपको प्रॉब्लम भी होता है जब सप्लाई चेन में कि आपको प्रोडक्ट आप क्या देखते हो, आपको क्योंकि स्पेशली जब आप बाहर से खरीद रहे हो, क्योंकि एज़ यू नो कि हमारा प्रोडक्ट सारा इम्पोर्टेड है. आप बनवाते हैं कुछ प्रोडक्ट रेडीली अवेलेबल होता है वो आप बाय. आप जब बाय करना शुरू करते हो तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं. समटाइम्स आपने जो चीज़ देखी होती है वो नहीं होती या वो क्वालिटी नहीं होती. इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कि आप यू जस्ट कीप लर्निंग दैट. तो वो कीप लर्निंग है. ऑब्वियसली फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं उसमें. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपको वो रिस्क लेने की एपेटाइट है और आपका पैशन है टूवर्ड्स व्हाटएवर द प्रोडक्ट इज, तो फिर वो सक्सेसफुल ही होता है. वो थोड़ा टाइम ज़रूर लेता है. डिपेंड्स कि कितना आप पैशन उसमें आप इन्वॉल्व करते हैं, वो लाज़मी सक्सेसफुल होगा. मैंने जो अब तक अपने साथ भी देखा और अपने आस-पास भी जो लोगों में देखा कि उनका पैशन अगर है काम में तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है. आपने पैशन और रिस्क दो चीज़ों की बात की. So when you talk about when you take these two things together, and now you have also have to wear multiple hats for your brand, especially when it's a startup, you're starting this up. You have to look at the marketing aspect, you have to look at the procurement aspect, you have to look at the element of customer loyalty base, you have to look at the payment cycle, revenue कैसे generate होगा, you have to look at the expenses and cost factor. Were there any tough challenges, any hard choices that you made
that impacted, that questioned your leadership and the ability to take this risk? It, Were ha- these it, any tough decisions initially that you had to sorry, take? it happens time to time. It's not like you have a perfect journey and you'll just start and you'll Yeah. end up. It's not a perfect journey. It happens all the time. We started buying stuff. Let me start from the start. Mm. So we started buying stuff, and initially we had no idea how to sell it. Right. And we, as in I, Mm. because I was doing it. Yeah. And somehow, obviously, then you start. You need financial freedom. Then you have to sell your stuff. तो हमने कुछ मॉल्स को अप्रोच करना शुरू किया विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अप्रोच एंड बहुत डिफिकल्ट होता है उनके साथ। आपको इतनी आसानी से आपको न्यू कोई ब्रांड आना चाह रहा है, उनकी अपनी प्रेस्टीज है, एक मॉल की अपनी प्रेस्टीज होती है, उन्होंने प्रोडक्ट देखनी होती है। समहाउ हमारी प्रोडक्ट, क्योंकि मेरा डिज़ायर भी यही था, ड्रीम भी यही था कि जो डेली वेयर है वुमेन का, इट्स नॉट लाइक कि जो हम इवेंट्स पे पहनते हैं अपनी शादी पे, ब्याह पे। मेरा फोकस था डेली वेयर में, क्योंकि मैं अपने आसपास बहुत लोगों को देख रहा था एक एक बहुत ह्यूज फर्म में। तो मैं क्योंकि वी स्टार्टेड विद वुमेन ओनली, तो मैं देख रहा था कि बहुत डेली वेयर में कितना गुंजाइश है। तो क्योंकि उससे स्टार्ट किया था हमने, तो हमने फिर एक मॉल को हमने अप्रोच किया, उन्होंने प्रोडक्ट्स देखे, एक इंस्पेक्शन होता है, एंड उन्होंने हमें जगह दे दी। डिज़ाइनिंग से मेरा क्योंकि थोड़ा-सा ताल्लुक़ रहा था, क्योंकि आई वाज़ डूइंग मीडिया प्रोडक्शन, ड्रामा प्रोडक्शन, स्टेज डेवलपमेंट एंड ऑल दैट। तो हमने एक अच्छा-सा कियोस्क डिज़ाइन किया और हमने लगा लिया। एंड प्रोडक्ट वाज़ वेरी डिफरेंट, जो भी मार्केट में अवेलेबल थी एट दैट टाइम। तो उसका रिस्पॉन्स डे 1 से, आई वाज़ नॉट एट द ओपनिंग, आई वाज़ नॉट एट माय कियोस्क, आई रिमेंबर आई वाज़ समवेयर एल्स। माय वाइफ, शी वाज़ हेल्पिंग मी। Right. So she called me, the amount of sale we generated on the first day. That gave me so much boost. It means we can sell it. People like it, obviously. तो वहाँ से शायद वो एक बूस्ट भी था, somehow you call Of it course, luck, yes, or yes. maybe it was a luck, or maybe it was a hard work we put in the buying of the good stuff. Certainly, yes. तो वहाँ से हमें शुरू हुआ करना, and at that time obviously I was doing my job as well. तो मेरी वाइफ ने बहुत इसमें एफर्ट किया शुरू करने में। जो ऑपरेशनल साइड थी सारी, वो हमेशा वही देखती रही। उसमें इन्वेंटरीज हैं या बाइंग मैं कर रहा हूँ, क्या प्रोडक्ट लेनी है, क्या डिज़ाइनिंग होनी है कियोस्क की, या क्या पैकेजिंग के डिज़ाइन होना है, या क्या चीज़ है, या एस्थेटिक्स जो हैं वो मैं देख रहा हूँ। लेकिन ऑपरेशनल साइड हमेशा से वो देखती रही, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली ऑपरेशनल साइड इनिशियली तो उन्होंने ही देखनी थी। तो फिर समहाउ क्योंकि जॉब में कुछ मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हुआ, तो हम इनिशियली इसको इतना एक्सटेंड नहीं कर सके। शायद हमने सोचा कि मतलब हमें सिर्फ़ अपना एक ब्रेड एंड बटर पे चल जाए शायद काम। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिलना शुरू हो गया, दैट मेड के हमारी डिज़ायर को उसने इंक्रीज़ किया। फिर वी स्टार्टेड अप्रोचिंग डिफरेंट मॉल्स, व्हिच अगेन इज़ अ डिफिकल्ट प्रोसेस। तो हमने कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में अप्रोच करना शुरू किया लोगों को, एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग आवर कियोस्क। तो जब आप इसको, क्योंकि एक मॉडल था, हम देख चुके थे, उसको रेप्लिकेट ही करना था, वाज़न्ट वेरी डिफिकल्ट। ऑब्वियसली कैश फ्लो के आपको मसाइल होंगे इफ़ यू डोंट हैव द बैकग्राउंड, कि जिसमें आपके पास फाइनेंसेस हैं, एंड सिंस हमने कोई लोन्स पे काम नहीं शुरू किया, अपने पास से शुरू किया, तो लिमिटेड, और या बूटस्ट्रैप, तो लिमिटेड आपके पास रिसोर्सेज होते हैं। बट वन बाय वन वी स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग आवर कियोस्क। हम कुछ जगहों पे हमें आइडियाज़ भी आते थे कि हम एक उसको लेके जाएँ शॉप लेवल पे या एक बड़े स्टोर के लेवल पे। बट उसमें कुछ स्ट्रैटेजी हमारी ऐसी थी कि हम ऐसी जगहों पे अवेलेबल रहें, जहाँ पे बेसिकली जो क्राउड है, पासर बायज़, उनके अट्रैक्शन हो, वो अट्रैक्ट हों, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। क्योंकि एज़ आई वाज़ टेलिंग यू कि वी नेवर गो फॉर शॉपिंग, ज्वेलरी शॉपिंग। Particularly. हाँ, We go to particularly specific very big shops and very big brands for gold वही shopping. गोल्ड rather, शॉपिंग यू गो but दैट। not for imitations. इमिटेशन के लिए आप कभी भी घर से सोच के नहीं जाते कि आओ ज्वेलरी लेने चलते हैं, दैट नेवर हैपेंड। यू हैव टू बी देयर Yes. व्हेन वेयर पीपल कैन सी यू, ऑब्वियसली। तो इस तरह की हमारी स्ट्रैटेजी थी, तो हमने छोटे-छोटे कियोस्क लेना शुरू किए, सही. एंड अल्लाह का शुक्र है, उससे काफ़ी फिर आपका कैश फ्लो बेटर होना शुरू होता है, तो फिर आपके पास गुड प्रोडक्ट्स बाय करने की, वैरायटी बाय करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो दैट
keeps going on. और Right. right now पाकिस्तान में हमारा ये setup है, and as I was telling you, हमने further extend किया है in 1 or 2 countries. We'll discuss about it. Yes, and I will be further delving into that. How difficult it is to kind of like now, pan out to Europe and Portugal, and then also have establishment in the UK, I believe. UK and Yeah, right. UK and Because you're Portugal. expanding in other areas also. How difficult it is, and what would you advise any young entrepreneur, any student who is thinking, or anybody, any professional who wants to have like their in order to vest in their dream or into their brainchild, they might have a service or a product that they must be thinking, and they have done their research, but there's always a fear of an apprehension of thinking, what might be the result, what might be the outcome of it, whether people are going to like it, whether this there a need or not, or there's ample need and there are ample choices. Now you were stepping into a market which already had a lot of options. कितना difficult होता है? What are the elements that you need to maintain in order to stand out, and then even in a saturated market जो already इतनी saturated है, इतने options हैं, especially when it comes to imitations and हाँ दिला artificial jewelry, क्या क्या की pointers होते हैं जिनको लेके चलना होता दिला difficulties जो है ना वो can be different for different businesses and Right. different markets for different countries. है? True. Difficulties, you have to understand कि difficulties तो को इनकाउंटर करता है आपका पैशन कितना है, क्या हैव टू गो। जैसे हमने जब शुरू किया, जब हम करना चाह रहे हैं तो एक कॉमन मिथ्स भी हैं वैसे मार्केट में कि अगर टू मच अवेलेबिलिटी है तो शायद आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। जब भी आप अब मैं आपको छोटी बिल्कुल ही लोकल मार्केट की मिसाल दूं, अगर जहां भी आपकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मिलता है, यू गो देयर एंड यू विल सी कि सारी दुकानें इलेक्ट्रिकल हैं, वो एक इलेक्ट्रिक मार्केट डेवलप हो जाती है Yes. एंड एवरीवन इज अर्निंग। True. इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं इकलौता होऊंगा तो जब भी कमा सकता हूँ, इट्स नॉट लाइक इन रिटेल स्पेशली। Yes. तो हमें ये तो क्योंकि मैंने बताया कि हम एक स्ट्रॉन्ग बेस तो डेवलप कर चुके हैं ना पाकिस्तान में, हमारा सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग हो चुका है, हम मार्केटिंग करना आ गई है हमें, हम मार्केटिंग कर रहे हैं कि कैसे करना है, फेसबुक को कैसे यूज़ करना है, इंस्टाग्राम को, टिकटॉक शॉप्स को कैसे यूज़ करना है, ये हमें ऑब्वियसली हमारा एक बेस बन चुका है, सप्लाई चेन भी बन चुका है हमारा। तो हमें जो लीगैलिटीज़ हैं वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट थी एट स्टार्टिंग इन यूके। कंपनी फॉर्म करना, बैंक अकाउंट्स खोलना, ये वो डिफ़िकल्टीज़ हैं जो हमने फेस की। नॉर्मली अगर इनिशियल स्टार्टअप ही आप किसी फॉरेन कंट्री से करना चाहोगे, तो आपके लिए तो सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं। आपको मार्केटिंग भी डिफ़िकल्ट है। व्हाट टाइप ऑफ मार्केटिंग यू विल डू इन दैट मार्केट? यूके में कौन-सी मार्केटिंग ज़्यादा चलती है? टिकटॉक शॉप क्या रिजल्ट्स देता है या फेसबुक मार्केटिंग क्या देती है, इंस्टाग्राम क्या देता है? यू हैव टू अंडरस्टैंड गूगल मार्केटिंग कैसे चल रही है? या फिर आपकी सप्लाई चेन क्या है, वहाँ का टैक्सेस का सिस्टम क्या है? तो वो तो आपको फिर रिसर्च करनी पड़ती। तो हमें क्या, हमारे लिए डिफ़िकल्टी जो थी सिर्फ़ लीगल सेटअप, वो दैट वाज़ द न्यू थिंग। तो हमने कंपनी फॉर्म करनी है, बैंक अकाउंट्स खोलने हैं, टैक्सेस का सेटअप देखना है, कितने टैक्सेस हैं जो वहाँ पे ऐड होते हैं, कि ऑब्वियसली हमारी कंट्री से ज़्यादा टैक्सेस हैं। इम्पोर्ट पे क्या टैक्सेस हैं, सेल पे क्या टैक्सेस हैं, और फिर इनकम के क्या टैक्सेस हैं, तो वो सारी चीज़ें। तो ये हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट चीज़ थी। लेकिन अगर एक बंदे ने, एक स्टूडेंट ने एक चीज़ शुरू करनी है और वो फॉरेन मार्केट में ही शुरू करना चाहता है, तो ऑब्वियसली ये एक बिगर रिस्क है। अगर आपका ऑलरेडी कोई एस्टेब्लिश्ड नहीं है, एक प्रोटोटाइप आपने अपने एनवायरनमेंट में क्रिएट करके उसको रन करके चेक नहीं कर लिया है, तो इट वुड बी अ बिट मोर डिफिकल्ट। इट्स नॉट लाइक इट्स इम्पॉसिबल, एवरीवन इज डूइंग इट। देयर आर सो मेनी पीपल जो सक्सेसफुल हैं इसमें। ऑब्वियसली फेलियर्स भी हैं, बट फेलियर से डरना नहीं है, बात वही है। तो इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसको हमने नहीं कर सकते या नहीं हो पाएगा। एज आई सेड कि जैसे हमने यूके में जो शुरू किया, वो एक्चुअली एक बच्चा है, बहुत बहुत अच्छा सा बच्चा है, उसने मुझे अप्रोच किया कि हम यहाँ पे ये करते हैं। तो यूके में वो तो मतलब जस्ट उसने स्टूडेंट लाइफ ख़त्म ही की है अभी। तो इट्स गुड फॉर दैट इफ योर स्टूडेंट्स आर लर्निंग। तो उसने अप्रोच किया मुझे कि हम ये करते हैं। ऑब्वियसली ही इज़ नोन टू मी, ही इज़ रिलेटिव। तो उसने मुझे अप्रोच किया एंड आई नो कि और क्या किड्स करते हैं, सॉरी एक्चुअली क्या करते ये हैं? वेरिएबल्स को एक्सपेंड करते हैं। Alright. यूके जब हमने करना Okay. शुरू किया, Okay. तो उसने बेसिकली अप्रोच करना शुरू किया कि हम ये करते हैं, तो हमने एक सेटअप सही। लगाने। डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा वो आपको? डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा, हर मार्केट चीज़ रीच में, हर चीज़ मार्केट रीच में हेल्प ब्रांड करेगा, हर विजिबिलिटी चीज़ में में। हेल्प करेगा।
kind of a partner for you के Right. venture, And you he can was say. very focused that, he would rather do it for your brand only. हाँ हाँ वो हाँ और हाँ किसी के बिल्कुल लिए नहीं बिल्कुल कर रहे थे. बिकॉज he was obviously looking at us कि हम ग्रो कर रहे हैं और जी, बिजनेस जी, चल रहा है yes. तो He ऑब्वियसली wanted to सक्सेसफुल get मॉडल था associated, right? तो उसने अप्रोच किया ऑब्वियसली मेरा मुझे एक दो लोग पहले भी अप्रोच कर चुके थे डिफरेंट जगहों से अप्रोच करते हैं अभी भी करते हैं तो आपको ये देखना है कि वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा उसमें पैशन है नहीं है इस बच्चे को मैंने समझाया कि ये इट्स नॉट लाइक कि आपके मेरा ड्रीम है कि मैं ये कर लूँ एंड देन डू नथिंग अबाउट इट ऐसे नहीं हो सकता यू हैव टू डू सम एफर्ट्स तो Yeah. मैंने उसको कुछ गाइडलाइंस दिए कि आपको अगर स्टोर डेवलप करना है तो कैसे होगा ये कैसे होगा ये ठीक कैसे है, होगा right. ऑब्वियसली आई वाज विद हिम बट उसने बहुत एफर्ट पुट इन किया उसकी डिज़ायर थी ऑब्वियसली इट शोड कि उसकी डिज़ायर है तो उसने एफर्ट पुट इन किया तो फिर जब नज़र आता है कि सामने वाले को जो न्यू जनरेशन है वो करना चाह रही है काम आई विल बी मोर देन हैप्पी कि कोई भी मेरा काम ले ले और मुझसे समझ के करना शुरू कर दे आई वुड बी वेरी हैप्पी Yeah. तो इट फेल्ट वेरी गुड कि उसने बच्चे ने काम करना शुरू किया Hmm. एंड माशाल्लाह वो ऑनलाइन स्टोर तो ऑब्वियसली रन कर रहा है वो एग्जीबिशंस को उसने शुरू किया हुआ है ठीक ठाक लेवल पे एग्जीबिशंस को Great, अटेंड करता great. है मतलब फिजिकली आप जाते हैं और मोस्ट प्रोबब्ली 6 मंथ्स टू 1 ईयर में हम एक अपना एक फिजिकल स्टोर वहाँ पे यूके में ओपन कर लेंगे Great. इंशाल्लाह When it comes to now collaborating with external markets, how important it is for you to know that fine, the market reach is going to be there, brand visibility. You will delve into a new market, but does one need to invest sufficient time in researching about that particular X market's culture, their requirements, their likes, their preferences? They should reach out, or do you think that there has to be certain faith in your own products, individuality, and well, service it's a very tricky question that you should just blindfoldedly delve into it, whether there's a requirement or not? it's a tricky question व्हाट आई थिंक कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो फेथ से रन हो गए सक्सेसफुली Hmm. बट वी कैन नॉट टेक दैट एज एग्जांपल हमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ Hmm. कॉम्बिनेशन ऑफ रिसर्च एंड फेथ आप कोई भी हम एज एज अ टीम जब बैठते हैं एज अ तो आप रिसर्च करेंगे अपनी पूरी एफर्ट लगाएंगे आप अपनी पूरी एफर्ट करेंगे अपनी रिसर्च करेंगे फिर उस रिसर्च में फेथ करेंगे कि जो रिसर्च मैंने की है Hmm. दिस विल पे ऑफ Right. तो आप इट्स नॉट लाइक कि आप एक ब्लाइंड फेथ से चले जाएं दैट्स माय स्ट्रेटजी ऑब्वियसली पीपल डू डिफरेंट थिंग्स Hmm. आपने रिसर्च करनी है वंस यू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू देन हैव फेथ इन इट Yeah. if it's failing take a step back That. do the research again Hmm. and whatever tweaking is required do that and Right. restart Yeah. तो faith and research is very important Very research as I said कि मैंने जो शुरू किया मैंने बहुत रिसर्च किया Hmm. what type of product किसने बाय करना है कितने का बाय करना है कोई और कंपटीशन है वो कितने का सेल करता है उसकी क्या स्ट्रेटजीज हैं Logic or intuition both are are important important. both are important intuition is also important it's not Yes. like कि आप 100% research based I'm not discouraging Hmm. मैं कह रहा हूँ both should be Things there should both be should be there Hmm. आपका रिसर्च बहुत ज़रूरी है and have faith in yourself and your research obviously you did the Yeah. research Yeah. to have faith in it if it Hmm. suggests that you should start some business Hmm. you should Yeah. फिर just follow that वो passion फिर आपको लेके चलेगा बिल्कुल. and वो successful करता है Because generally Asian markets go in terms of uh, fashion functionality ज़्यादा अच्छी तरह से देखा जाता है, ज़्यादा prominently देखा जाता है दुनिया भर में. When it comes to Asian markets, we are known to come up and keep up with the trends, and those trends are then followed in the external markets. Hmm. Because a lot of embellishment and a lot of comes from new these products, markets yeah. These markets developed, particularly the Indian and the Pakistani and the Malaysian and these markets, Chinese market. The fashion started paving from here and then it reached out to the external markets. What made you think that? And then I would come to the sourcing element also. How important do you think ethics, professional ethics, and then professional ethical sourcing
is important for a brand? You'll have to come to that in the end. Okay. When you're starting business, All right. you'll always look for shortcuts. Mm. You'll always look for cheaper products. Mm. Means it's a learning. It's a learning that I have learned. You s- you think that I can do this in cheaper prices. You can Yeah. do this in I this can make thing. more. I can do this. Yeah. When you start doing business, all sorts of good and bad thoughts come to your mind, Mm. and you have to choose between them. And Mm. you and I'm telling you, in the end, you'll have to come to the ethical buying. You'll have to come to it Right. because your customer, which is Mm. very literate now, especially the customer we are dealing with, they are literate. They know things, Mm. so they'll demand it. Mm. In the end, they'll demand it. Yeah. So you have to be वेरी श्योर कि आपका जो सप्लाई चेन है वो किस तरह का है, टाइप टाइप ऑफ मटेरियल्स क्या हैं, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर हार्मफुल फॉर स्किन्स वो आपको देखने हैं, व्हाट टाइप ऑफ फैक्ट्रीज और आउटलेट्स जहाँ से आप ले रहे हैं वो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, यू हैव टू कीप अ चेक ऑन दैट. क्योंकि और दूसरा है कि जो भी आपके जो एथिकल सेटअप नहीं होते हैं ना, फिर थोड़ा लॉन्ग चलते नहीं हैं, वो जी. थोड़े अरसे में जी. वो डाउनफॉल शुरू हो जाता है. तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट कि आप कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं. ऑब्वियसली द ब्रांड्स, फैक्ट्रीज जो काफ़ी अरसे से रन कर रही हैं, 50% चांसेस तो 50 to 60% चांसेस ये हैं कि आप उन पे अंधा एतमाद भी कर सकते हैं, क्योंकि इफ दे आर रनिंग बिजनेस फॉर लॉन्गर पीरियड, दे विल कम टू हैव टू कंक्लूजन ऑफ दैट कि भाई एथिकल आपका बाइंग होनी चाहिए. Now, ethical sourcing, and we have to keep up with the professional and the very, in order to give your product a personalized touch, also, you have to be very ethical in your own ways. But Ed, like you mentioned, trial and error and practices, and falling and then getting up, and learning from these mistakes will teach you on the way. How and how should be, how important, and then how to sustain in a rather competitive market, and that too in a very practical and a very smart way. When you know that the market will have a lot of substitutes, your product will have a lot of substitutes. Your product can any day get a beat from any other product or Yeah. service. Then sustainability, how should we look at sustainability in this market for a longer haul, for a longer period of time? This is not like you cannot have a strategy for that. You have to be on your toes always. Okay. You have to be Alert all the alert. You have your alert system for the products that are coming in the market. What is in these days? It's not about के always जो भी in है, you go for that. But you should know what are in things these days. Adjust accordingly as soon as you can. Right. You have to adjust your buying strategies, selling strategies, packaging material, presentations, your marketing. You have to keep changing that. Find a good suppliers. Okay. This will take time. Right. This will take time. This will give you some headache to find good suppliers. Right. तो गुड सप्लायर्स जो हैं वो आपको, क्यों गुड सप्लायर्स वो क्यों हैं, गुड सप्लायर्स वो इसलिए हैं कि दे डू दैट ऑन योर बिहाफ. They are in touch with the jewelry market worldwide. Right. Whatever the famous brands are coming up with, somehow उसी के अराउंड उनकी आपकी knowledge ज्वेलरी, base वैसी, जी. उनकी ज्वेलरी मार्केट उसी के अराउंड होती है. ठीक है. Whatever the famous brands are producing, ज्वेलरी मार्केट पूरी असल में उसी के अराउंड घूम रही होती है. तो वो आपको, अगर आपके पास गुड सप्लायर्स हैं तो वो ऑलरेडी ट्यून्ड इन है, तो आपका एफर्ट लेस हो जाता है. अब आपको देखनी है अपनी इंटरनल मार्केट, जिस मार्केट में आप हो वहाँ का ट्रेंड क्या है. वहाँ पे कल्चरली ट्रेंड डिफरेंट हो सकता है. आपके इवेंट्स आते हैं उस पर ट्रेंड डिफरेंट हो सकता है. एज आई सेड कि मुझे ट्रेडिशनल ज्वेलरी पर्सनल चॉइस नहीं थी मेरी, मुझे कभी पसंद नहीं आती थी जो हमारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी. अब आती है वैसे, उस वक्त बिल्कुल नहीं आती. तो आप आपको देखना होता है कि लेट्स से हमारे अपने रिलीजियस इवेंट्स हैं, ईद है, तो उसमें क्या डिमांड्स आ रही हैं, या हमारा वेडिंग सीजन है तो उसमें क्या डिमांड आ रही है. तो आपको समटाइम्स डिमांड के हवाले से चीज़ें चेंज करनी है, सीजन के हवाले से चीज़ें चेंज करनी है. यू हैव टू बी ऑन योर टोज. इट्स नॉट, कोई स्ट्रेटजी नहीं हो सकती. स्ट्रेटजी लॉन्गर टर्म स्ट्रेटजी है, फाइंड अ गुड सप्लायर, कीप योर आईज ओपन ऑन द ट्रेंड्स दैट आर सर्कुलेटिंग इन मार्केट, एंड दिस रिसर्च प्रोसेस हम जो बात कर रहे थे,
इट जस्ट कीप गोइंग ऑन। Yeah. इट्स नॉट लाइक कि आप एक दफ़ा सेटअप कर देंगे और ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। रिटेल फैशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। यू हैव टू जस्ट कीप अपडेटिंग योरसेल्फ। आप ये बात कर रहे थे, earlier we were discussing that B2C is very satisfying, but obviously at the same time B2C has its own downside also. What are the ups and downs when it comes to B2B and B2C, and why did you say that? That's my first question, and I'll ask another question to you. That when it comes to now, since you have expanded your product line also, so you're having smart, you're having technology items, technological items as well. You have wearable tech, you have smartwatches. How do you see integrating technology in the evolving ambit of fashion? How is technology making its way? Well, I'll answer that first. हाँ, टेक्नोलॉजी को एम्बेड तो करना पड़ेगा आपको टाइम टू टाइम। हमारी जो लोकल मार्केट है ना, अभी जो हम यहाँ पे पाकिस्तान में कैटर कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फैशन को कैटर कर रहे हैं, मैन एंड वुमेन। उसमें भी हमारी प्रोडक्ट लाइन बड़ी बड़ी लिमिटेड है, जिसको अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं टूवर्ड्स क्लोथिंग, बैग्स एंड एसेसरीज। उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, विच यू विल सी इन 6 months to 1 year इंशाल्लाह। जो टेक्नोलॉजी वाला एस्पेक्ट है, ये हमने अभी इसके इसके प्लानिंग फेज में है, जो हम सिर्फ यूरोप में शुरू कर रहे हैं। इसको अभी हम पाकिस्तान में नहीं कर रहे हैं। एंड आई फॉरगॉट योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज अबाउट द रिटेल एंड B2C। Yes, the ओके, B2C, the B2B. अच्छा B2C, एज आई सेड कि हम जब रिसर्च कर रहे थे इस बारे में, तो हमारे जो आइडियाज़ थे वो IT इनेबल्ड सर्विसेज के बारे में ज़्यादा थे। IT इनेबल्ड सर्विसेज आपको शायद उस तरह से इमीडिएटली आपको पे करना शुरू नहीं करती। तो और एट दैट टाइम हमें ज़रूरत थी कि हम इमीडिएटली हमारे पास कैश फ्लो हो, जो भी चीज़ हो। तो रिटेल एक ऐसा बिजनेस है जो ऑब्वियसली आपको इमीडिएट कैश फ्लो दे रहा है। इसके अप्स एंड डाउन्स में जो मुझे समझ में आते हैं, आपके पास इमीडिएट कैश अवेलेबल होता है, ठीक है। ऑब्वियसली। आपके पास डायरेक्ट कस्टमर फीडबैक अवेलेबल होता है फॉर योर प्रोडक्ट। वो आपको डेली बेसिस पे कस्टमर, टाइप्स ऑफ कस्टमर जो होते हैं वो अनलिमिटेड है। वो आपको डिफरेंट फीडबैक्स देते रहते हैं, एंड यू जस्ट कीप इम्प्रूविंग अकॉर्डिंग टू दैट। You don't have any हाँ, further level, कोई लेवल्स and नहीं कोई है। इंटरमीडियरी नहीं है बीच हाँ, में बिल्कुल आपके और नहीं। कस्टमर के। हाँ, और वो डायरेक्ट आपका कम्युनिकेशन का गैप भी नहीं है। और कस्टमर्स ऑब्वियसली समटाइम्स आर वेरी ब्रूटल। अगर आपकी कोई सर्विसेज में प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, एंड आई वुड नॉट से कि आप 100% हमेशा सही होते हैं एज रिटेल बिजनेस। आई नो कि हम गलतियां करते हैं, हम सर्विसेज में भी गलतियां कर देते हैं, हमारी प्रोडक्ट में भी कुछ गलत हो सकता है। ऑब्वियसली आप सोर्स कर रहे हैं, समटाइम्स हो सकता है बहुत ही ब्रूटल फीडबैक भी मिल जाता है, समटाइम्स आपको बहुत ही अच्छे अल्फाज में भी मिल जाता है ऑब्वियसली। तो फीडबैक वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो करता है। और दूसरा, जैसे एज आई सेड कि आपका कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलता रहता है उससे, क्योंकि आप कांस्टेंट बाइंग करनी है फॉर न्यू आर्टिकल्स ऑफ न्यू ट्रेंड। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। डाउन साइड, आई डोंट सी एनी डाउन साइड फॉर B2C। Okay, all right. स्केल आप कर सकते हैं, हम कर पा रहे हैं। अगर इसमें ऐसी कोई लिमिटेशंस होती कि हम इसको स्केल नहीं कर पा रहे होते, तो शायद मुझे लगता है कि इसकी डाउन साइड है। मुझे लगता है फैशन इंडस्ट्री में अब स्केल होना बहुत नॉर्मल हो गया। यू कैन डू इट Yes. And इजीली। in fashion industry and in particularly retail, I think हाँ, रिटेल इट्स B2C is that what works in the best way बेस्ट possible. वे। B2B ऑब्वियसली एक ह्यूज वॉल्यूम्स पे काम करता होगा। आई डोंट नो, मे बी huge revenues पे. हाँ, ह्यूज रेवेन्यूज पे। आई डोंट नो, मे बी विल डू इट समडे। Yeah. एट दिस Yeah. पॉइंट आई एम No, I नॉट think इनटू इट। collaborations and very complementary collaborations will definitely work. Yes, maybe this thought obviously came in mind Yes. so many times कि Yes. आप मैं एज अ सप्लायर कुछ बड़े ब्रांड के साथ काम कर सकता हूँ। जी, because you have the resources, हाँ, the tools. but I have to think about it कि Yeah. मैं शायद इस पे काम करूँ, since we are talking on that। मैंने सोचा है, but मैंने कभी इसके लिए एफर्ट नहीं किया। Or collaborations, I think you can do with not just very big brands, but even certain new brands, certain startups, certain, I mean, as raw as a household startup. I love to do that. And I've seen a lot of influencers come up with their own products
and own launches now, and they are doing exceptional work. Yeah, I see so many. I was appalled on the level of quality and aesthetic that they have produced, Unbelievable. even in market. It's unbelievable. Unbelievable. It's just that they are new, nobody knows them. They just need a sort of some sort of a support. But I would love to do that. I'll think And about that it. would actually work wonders. Yes. You know? And the aesthetics we are producing in Pakistan, especially these days, since I'm in Europe, so जी. what I see that we are doing wonderful in aesthetics. Mhm. It's not like कि सारा फैशन ही यूरोप से आ रहा है. हमारा जो aesthetic डेवलप होता जा रहा है. Since we are a global village now, obviously we see जी, जी. inspirations हम्म, इधर से उधर जा रही हैं और उधर हम्म, से इधर आ रही हैं. टू गुड aesthetic हो गया. और जो हमारे जो जो बहुत छोटे स्टार्टअप हैं उसमें से बहुत बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं. टोटली एडमिट दैट Yeah, एंड आई वुड yeah. लव टू सपोर्ट. शायद मेरी पर्सनालिटी टाइप है या मुझे लगता है कि ये जो आजकल बच्चे आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, they should try to do some business हम्म, instead of just keep thinking about jobs. It's not that difficult. मतलब अगर डिफिकल्ट होता तो मेरे लिए होता. आप यू जस्ट हैव टू डेवलप दैट पैशन फॉर हम्म, वॉट एवर प्रोडक्ट. एंड फेलियर से डरना छोड़ दें. फेलियर्स इज मतलब मैं आपको गिनवा नहीं सकता कितने फेलियर्स हैं इस छोटे से स्टार्टअप में, कितने फेलियर्स हैं. बट इससे कुछ होता नहीं है. right. इवेंचुअली आप सक्सेसफुल हो जाते हैं. हम्म, ये कुछ ये कुछ इको सिस्टम ऐसा है. हाँ, ये अल्लाह मियाँ का भी कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि बिल्कुल, आप सक्सेसफुल होते हैं, आपको मेहनत का फल मिल जाता है. eventually. I think you have to consistency with hard work. With It's hard very work. consistent hard work is हाँ very important. ऑब्वियसली आपको Yeah. अपनी ही चीज. अब जो वो हार्डवर्क तो मतलब मैं अपनी जॉब में भी हार्डवर्क ही कर रहा था. Mm. वो हार्डवर्क आप पुट इन करें ना उस काम में, आपको पता चले. I was hearing a very um, big law, a very distinguished personality the other day at the हम्म. training, and he said that even a consistent droplet of water can put a dent in And a the stone, stone, yes, we see that obviously. and it happens. It's true. It's If really you do true. it consistently, there will be a dent. If someone takes a lesson from my journey, that is कि never give up. Keep doing it. Yeah. It's not like that कि I had very big losses or something. It's just I keep having hurdles for whatever reasons. Hmm. Sometimes you have to जी. go to mall and उनसे बात करनी है, आपको वो जगह चाहिए, नहीं मिलती. लोग होते हैं बहुत सारे लोगों को अप्रोच करना मुश्किल होता है. कुछ लोगों ने अपने आप को अप्रोचेबल बनाया ही नहीं होता. Hmm. आप यू विल जस्ट कीप हैविंग डिफिकल्टीज. जस्ट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ. Right. जैसे That's आपकी true. लाइफ में चलता रहता है वैसे बिजनेस में भी चलता रहता है. जस्ट डोंट बी डिस्करेज्ड विद दैट. ये Hmm. कोई चीज़ नहीं है कि जिसको हम डिस्कस भी करें कि अगर आपने बिजनेस करना है तो Hmm. डिफिकल्टी को, फेलियर्स को यू जस्ट यू जस्ट नो कि ये एक पार्ट है. This is a दिस noise इज अ that will पार्ट. या remain consistent, but you have to keep your हाँ blinkers on. Um, Speaking of that, and now expanding the business expansion, um, reaching out to more markets and more audience, even the current existing market, and then obviously international market. How do you look at social media playing its role, particularly for now? Since we're talking about wearables, in growing your brand, and how do you look at what is your approach towards utilizing these influencers and the e-commerce platform much more powerfully, effectively? अ, मैंने जब हमारा बिज़नेस शुरू हुआ, तो आप क्या करते हैं, आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं, फेसबुक पेज बनाते हैं, इंस्टाग्राम क्रिएट करते हैं. Mm, आई स्टार्टेड सेंडिंग इन्विटेशन टू माय फ्रेंड्स mm, कि इस पेज को लाइक करें टू mm. ग्रो माय ऑडियंस. Yeah. एट दैट टाइम समवन गिव मी एडवाइसेस अबाउट हाउ टू यूज़ Mm, सोशल मीडिया mm, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट लेडी. शी यूज्ड टू वर्क विद मी. तो mm, उसको जो मैंने यूज़ करना शुरू किया है, जब सोशल मीडिया को आप यूज़ करना शुरू करेंगे, अब तो उस वक़्त जब 5 से 10 साल पहले ऑब्वियसली इससे कम ट्रेंड था, जी. बट दिस विल डू वंडर्स. Mm, आपकी जो रीच है ना, यू कैन नॉट बी अ, एवरीवेयर ना. इन पाकिस्तान आप सब जगह अपने स्टोर्स ओपन नहीं कर सकते एज़ अ स्टार्टअप, बट आप हर घर में, हर मोबाइल पे पहुँच सकते हो, हर स्क्रीन पे आप पहुँच सकते हो विद योर mm, मार्केटिंग. mm, तो सोशल मीडिया को आपको यूज़ करना सीखना पड़ेगा.
इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, टिकटॉक मार्केटिंग या गूगल पे आपने करना होता है एडवर्टाइज़मेंट, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब जो हमारा जो भी प्लेटफ़ॉर्म है, जो ऑनलाइन सेल करता है, दिस इज़ एसेंशियल। ये आपको सीखना पड़ेगा। आप जब अपना एक बहुत बड़ा नाम बना लेते हैं, पीपल वुड फाइंड योर वेबसाइट एंड कम टू इट एंड ऑर्डर इट। हमारे केस में कुछ लोग आते हैं जो खुद ऑर्डर करते हैं, दे डोंट कम फ्रॉम सोशल मीडिया ऑब्वियसली, बट दिस विल टेक टाइम। उससे पहले अगर आपको रीच करना है लोगों को, योर प्रोडक्ट शोकेस करना है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज हैं, तो सोशल मीडिया को हैंडल करना सीखना पड़ेगा। एंड लेट मी टेल यू, इट्स नॉट डिफिकल्ट, यू डू इट योर। मतलब मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग अपने ही मोबाइल पे, अपने ही लैपटॉप पे सीखी है, खुद करते हुए। इट्स नॉट लाइक कि आपको उसके लिए कोई क्लासेस लेनी है, कुछ करना है। इट्स दैट ईजी नाउ। कितना स्टॉन्च था, कितना डिफरेंस था आफ्टर यूजिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग इन योर फॉलोअरशिप, इन योर रीच, इन योर विजिबिलिटी? डिड यू एक्चुअली सी टैंजिबल इन रिजल्ट्स? माय केस इट वाज लाइक कि अगर आप ₹10 की अगर आप सेल करते हो, it will become 100, 10 time 10 folds में for me, for my business. It's not applicable to all businesses. No, but it in actually in worked yes, in generating in outcomes. 10 times, 10 times वो आपको replicate कर देता है कि आप कितना रीच करते हो उसको। ऑब्वियसली आप सोशल मीडिया भी वही है कि आप टेस्ट और एंड रेवेन्यू लर्निंग, भी उसी तरह से इम्पैक्ट रेवेन्यू करा था। इम्पैक्ट करता है, बिल्कुल करेगा। अगर आप सोशल मीडिया यूज किए बगैर कोई ब्रांड को स्टार्टअप के तौर पे रन करना चाहते हैं, आई डोंट फाइंड एनी अदर स्ट्रेटेजी। आप सोशल मीडिया के बगैर आई डोंट सी एनी हाँ, स्ट्रेटेजीज there's कि आप कुछ कर सकते हैं। there's no compromise there. हाँ, तो दीज आर द टूल्स अवेलेबल राइट नाउ। समहाउ आई डोंट सी ऐसे टूल्स जो एक स्टार्टअप को फौरन एक क्रिएट कर दें, उसकी क्रिएटिविटी आप जितना अपना अच्छा क्रिएटिव होना चाहिए आपका, तो आई डोंट सी एनी अदर टूल्स कि जो इतना तेजी से उसको फाइनेंशियली आपको गेन देना शुरू कर दें। When it comes to now you having obviously some digital strategies, having being in this very competitive market zone, and then we talking about the integration of e-commerce and social media and getting influencers on board. Do you have a designated team that looks after it? How many? What is how is your leadership style? What is your leadership style? How do you go about your team? What is your recruitment style for the team? How is the team integrated in there? How many people? If you could just expand a Obviously, little on that. we have different type of operations. One part is only sales. Yeah. So obviously you have salesmen and their supervisor or the manager who is managing the sales team. We have a operational team which sits in head office and see all the inventories going to the kiosk. जितने भी kiosk हैं उनको क्या requirement है, क्या inventories जानी है, packaging material, एक वो operational जो aspect है वो देख। एक हमारी है online team, उसमें हमारे पास 3 लोग हैं जो online देखते हैं सिर्फ कि जो orders आ रहे हैं वो dispatch होने हैं। इसके अलावा हमारे पास एक marketing की हमारी कोई टीम इतनी बड़ी नहीं है, me and another person, हम 2 लोग हैं जो मार्केटिंग को हम Right. देखते हैं। Right. तो क्योंकि मेरा शुरू से टेस्ट एंड लर्निंग में मेरा इंटरेस्ट रहा था, तो मैं अपने आप को इससे दूर नहीं कर पाता। मैं अब इसमें शामिल रहता हूँ। Right. ऑपरेशन में मैं बहुत ज़्यादा शामिल नहीं रहता, लेकिन ये कि मैं उस पे एक ओवरसाइट रखता हूँ, हर वक़्त जो भी ग्रुप्स हैं उनमें मैं अवेलेबल हूँ, कोई चीज़ आगे पीछे हो रही है तो मैं देख रहा होता हूँ। ऑपरेशनली जो है वो ऑपरेशन मेरा जैसा आई टोल्ड यू कि माय वाइफ इज़ रनिंग द ऑपरेशंस। जो ऑपरेशंस है वो सारा पार्ट वो देख रही होती है, बट मैं उसको देख रहा होता हूँ कि अगर को कहीं मेरी ज़रूरत है, अदरवाइज़ शी इज़ मैनेजिंग इट। उनके पास अपनी टीम है ऑब्वियसली। Do you 3 think that it is for any entrepreneur after a couple of years, in order to now scale up the business, it's important to have high quality resources? 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन ये कि आपको डेलीगेट करना होगा। सिंस इट्स योर बेबी, द डिलेमा आई फेस, आई नो एंड स्टिल आई फेस इट कि सिंस इट्स योर बेबी, यू हैव क्रिएटेड इट, you don't want to let it go. Yeah. You don't want to delegate your work. You think you can do better than everyone. Yes. Yes. It happens, but you have to delegate. You are just 2 hands. There are so many hands that can come up and help. One, Yes. आपको वो रिसोर्सेज जो आपको मतलब जो यंग जनरेशन है, they'll think more creative. अगर आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल।
आपको जो रिसोर्सिंग है, जो अपना आपका जो हायरिंग है, वो ऑब्वियसली आपको अगर आपको एक्सपीरियंस है तो देख के करना होता है, वरना एज़ आई सेड कि एवरीथिंग इज़ जस्ट कीप लर्निंग। या तो आपको जो अगर आपके जो लोग हैं, आपको डेलीगेट करना इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपको स्केल अप करना है, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। इनिशियली हमें ये यस डिलेमा फेस करना पड़ा कि जी, जो सेल लेट्स से कियोस्क 1 से आती है, वो कियोस्क 2 से नहीं आती क्योंकि मेरी इन्वॉल्वमेंट वहाँ रहती है। तो अब मैं अगर वहीं रहूँगा तो फिर कियोस्क 3 कैसे होगा? फिर कियोस्क 4 वो कैसे कैसे होगा? फिर होगा 5 कैसे यस बनेगा? यस तो यू हैव टू इंक्रीज़ योर हैंड हेल्पिंग हैंड्स जो हैं यस आपके, सर्टेनली तो वो आप इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, डेलीगेट करने पड़ेंगे। जो भी जो फंक्शंस हैं, जो मुझे भी अभी एक थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होती है मुझे लेट गो करने में, बिल्कुल लेकिन आपको करना पड़ेगा। इस डेलीगेशन के बगैर नहीं होगा। दिस इज़ वेरी and not इम्पोर्टेंट। just delegation also coaching and mentorship how कंटीन्यूअस वर्क है, what is your strategy for that कंटीन्यूअस वर्क है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट लाइक कि आपने किसी को कुछ सिखा दिया एंड दे विल डू इट। कोई इसका सीक्रेट फॉर्मूला है कि उम, कोई किसी को अपने अपनी जैसी डुप्लीकेशंस कैसे बनाई जाए आप कितने टाइम में डेवलप हुए? आपकी कॉपी बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए? जब आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो कितने टाइम में डेवलप हुई? नहीं लेकिन आपकी अटैचमेंट जो आपका अपना प्रोडक्ट है उसके साथ कुछ और होगी तो और किसी ऑब्वियसली थर्ड पर्सन की कोई और होगी हाँ, तो या तो मॉनेटरी गेन्स आपको उसके तो पहले तो मॉनेटरी गेन अच्छा ये इम्पोर्टेंट बात है। आपका को मॉनेटरी गेन तो उससे बाँधना होगा ना उस जी इंडिविजुअल से। बिल्कुल इट्स नॉट लाइक वो अगर उसको आपने सिर्फ़ यही समझ रहे हैं कि उसने आपकी जॉब करनी है, तो फिर उसने जॉब ही करनी है, वो जॉब ही करेगा। आपको ये समझना होगा कि क्या मॉनेटरी गेन मैं उसको दे रहा हूँ। मोटिवेशन के लिए एक, सेटिस्फेक्शन एक। दूसरा क्या लर्निंग एंड डेवलपमेंट की मैं उसके लिए अपॉर्च्युनिटी क्या क्रिएट कर रहा हूँ कि वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट उसकी हो जिसमें वो उसने आगे बढ़ना है। ये सही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वो लॉयल्टीज़ चाहिए ब्रांड के साथ जो शायद आपकी हैं जी या उस जैसी, जी तो एक तो उसके लिए आपको मॉनेटरी गेन भी ज़रूरी है, उसके लिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो भी पर्सनैलिटी मेरी डेवलप्ड हुई है, आपकी डेवलप्ड है, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड से सर्टेन माहौल से गुज़र के यहाँ तक पहुँचे। अगर हम ये सोचेंगे कि शायद वो बंदा हम 6 महीने में क्रिएट कर लेंगे, दिस इज़ डिफ़िकल्ट। आप ये एक लर्निंग प्रोसेस है, उसके लिए यू जस्ट कीप हैव टू पुशिंग ऑन इट कि आप उसको पुश करते रहते हैं, उसकी लिमिट्स दिखाते रहते हैं कि तुम्हारी लिमिट्स कहाँ हैं। तो शायद आप कुछ अरसे में 2 साल में, 2.5 साल में एक ऐसा इंडिविजुअल क्रिएट कर पाते हैं कि जिसको आप पूरा पोर्शन दे सकते हैं as कि a वो leader संभाल on top, how much time do you dedicate to your team mentorship and ensuring that they have the same level of ownership and emotional attachment with your product like you do? जिन ब्रांड्स के पास ऐसे लोग हैं, वो बहुत लकी ब्रांड्स। आई हैव फ्यू ऑब्वियसली जभी चल पा रहा है। अगर मुझे कुछ भी स्केल करना ये चेंज होता रहता है कि मैं जी कितना टाइम देता हूँ। जी मैं टाइम देता हूँ अगर मैं पाकिस्तान में हूँ, जैसे हम्म आजकल हूँ तो मैं जी टाइम देता हूँ हम्म टीम। अगर मैं बाहर हूँ तो मैं बाहर किसी पर्पज़ से गया हूँ, तो मेरा फ़ोकस उधर है तो मैं यहाँ टाइम नहीं दे रहा होता हूँ। हम्म, तो ये तो चेंज होता रहता है। एज़ पर प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट को टाइम रिक्वायर्ड है वहाँ पे आप टाइम दे रहे हो। सही बट ये जो लॉयल्टी है, जो ब्रांड के साथ लॉयल्टी है, जो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है कस्टमर को डिलीवर करने की कोई आपके साथ कोई है जो हम्म जो सेम लेवल पे सोचता है उसी तरह, ये एक रेयरली ह्यूज रेयरिटी भी है और बहुत हाई प्राइस्ड कमोडिटी है। आप इसको ऐसे कह लें बट ये कि अगर आप अपने उसके साथ कोई मॉनेटरी गेन्स अटैच्ड करते हैं और लर्निंग डेवलपमेंट करते हैं इंक्लूडिंग उसका पैशन है yes साथ, yes probably तो फिर it शायद shows आप up ऐसे कुछ कर पाते हैं। सिंस वी आर अ वेरी स्मॉल स्टार्टअप तो hmm हमारे पास लोग हैं, hmm एक आधे, 1-2 ही लोग मैं सही समझता हूँ ऐसे हैं जो जिन पे मैं काम छोड़ सकता हूँ कि ये कर लेंगे। रिलायंस रिलायंस वो रिलायंस बहुत ज़रूरी वो है रिलायंस ज़रूरी है। वरना उसके वो बगैर स्केल अप कभी नहीं हो सकता उसमें जो है मुझे लगता है वो मेरा लैक है। जो मैं जितना एफर्ट पुट इन करूँगा जी ह्यूमन डेवलपमेंट पे, उतना गेन मुझे है और मैं अगर टाइम नहीं दे रहा हूँ, तो आई कैन नॉट विश कि ऑटोमैटिकली magically things will आबरा तो happen होने से आबराडाकडाबरा नहीं होना। बिल्कुल when you talk about because your voice will be reaching out to a lot of business students who dream of becoming entrepreneurs in future and even now what do you think is what are the key what is the essence to start your own venture especially when it comes to consumer goods and fashion अगर किसी को इस तरफ जाना हुँ, हुँ। है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में कोई हाउस होल्ड प्रोडक्ट लाना है
कोई फैशन प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है इन एंड वी नो दैट फैशन फूड consumer items they do have a lot of competition in the market. What would be your advice to these students, how to navigate? अगर आप ये दो दो अलग अलग चीज़ों को मैं करके चलता हूँ, अगर आपको कुछ कुछ ऐसा स्टार्टअप करना है जो आप शायद अपने घर से करना चाह रहे हैं, को होम स्टार्टअप टाइप चीज़ करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपकी स्किल्स क्या हैं, वो आपने आइडेंटिफाई करना। मेरा पैशन टुवर्ड्स क्या है, मेरी स्किल्स भी क्या हैं। मैं अगर अ, कुछ चीज़ क्रिएट करता हूँ, अपने हाथों से कुछ क्रिएट करता हूँ, देयर आर सो मेनी पीपल्स हू आर क्रिएटिंग ज्वेलरीज विद देयर हैंड एंड दे आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क इफ दे आर गुड इन इट। शायद उनको उस तरफ जाना चाहिए, बट एवरीवन इज नॉट स्किल्ड इन समथिंग। True. तो आपको फिर जो डिपेंड करता है वो आपका पैशन टुवर्ड्स किन प्रोडक्ट्स में जिन पे आपको रिसर्च करके लगता है कि आप इस तरफ जा सकते हैं। ज्वेलरी की तरफ एज आई सेड कि इनिशियली मेरा कोई पैशन नहीं था। इट सीम लाइक टू मी, इट सीम लाइक एस्थेटिकली कोई चीज़ है जो मैंने चूज करनी है और सेल करनी है, तो इट सीम्ड ईजी टू मी कि मुझसे कुछ रेजोनेट कर रही है कि ये काम मैं कर सकता हूँ। काइंड ऑफ स्किल्स मुझे लगा कि ये स्किल्स मैं या तो मेरे अंदर हैं या एक्वायर करना ईजी है मेरे लिए, तो ये मैंने रास्ता शायद उस वक्त चूज किया। नॉट फॉर एवरीवन। आपको अपने बारे में डोंट बी लाइक कि आपको पता ही नहीं कि आप करना क्या चाहते हो। यू शुड नो कि आपको करना क्या है। मेरी स्किल्स क्या हैं। इफ आई डोंट हैव स्किल, व्हाट स्किल्स आई कैन एक्वायर इजीली, इंस्टेंटली क्या कर सकता हूँ, और वो स्किल जो मार्केट में इन है, मेरा पैशन भी है टुवर्ड्स दैट और नॉट। एक कॉम्बिनेशन ऑफ दोज कि मैं वो करना भी चाहता हूँ। अगर मैं वो करना चाहता हूँ तो मैं वो स्किल्स एक्वायर करके शायद मैं उस तरफ जा सकता हूँ। एंड अगेन देन दिस प्रोसेस ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व्स कि आपको वो रिसर्च उसमें पुट इन करना पड़ेगा, टाइम व्हिच सीम्स लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम इनिशियली, बट वो आपको बहुत पे ऑफ करता है। The research element. रिसर्च When it comes to now students who are trying to, this is a very stable question, so I'll ask you in the end that the students are very keen, and now the Gen Z plan that we have. These students are get very easily disappointed if they don't if they don't get immediate outcomes, particularly monetary outcomes. How do you look at the aspect of work culture, which is a 9 to 5 work culture, um, a very capitalist way of looking at things, and then looking at entrepreneurship and how much it takes. My question primarily would like to press on the idea and the approach and the ideology that these students and particularly the young generation is having these days is how they look down upon the work culture these days, the 9 to 5 culture. They think that they might not be called or labeled as successful in the market if they are working for somebody as opposed to working for yourself. So, how do you look at it? What are the ups and downs, and what is going to be your final piece of advice and suggestion to anyone who is looking at the market and their own professional life with that approach? but this is my personal opinion. जो सोशल मीडिया के गुड इन्फ्लुएंसेस हैं, वी हैव बैड इन्फ्लुएंसेस ऑफ सोशल मीडिया एज वेल, Yeah. एंड डिस्टिंग्विश करना कि व्हाट इज रियलिटी एंड व्हाट इज पोर्ट्रेड क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है। These kids see so many successful people on the social media who might just be portraying that they are successful this easy way. तो obviously एक बहुत ज़्यादा हमारी जनरेशन से ज़्यादा इनके पास डिस्ट्रैक्शंस हैं कि ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सक्सेस देख के कि शायद हम ये दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू, एंड द life is not like that. I'm sure these kids are wonderful. Yeah. They are better than us, what I feel. ये बहुत बेहतर हैं कम्युनिकेशन में, एथिक्स में हमसे बेहतर हैं जो कमिंग जनरेशन है बहुत ज़्यादा। बट ये जो मैं इसको इस तरह भी नहीं करना चाहता कि जिसने बिजनेस नहीं किया वो शायद अनसक्सेसफुल, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जो बच्चे हैं, माय ओन किड वांट्स टू बी अ स्पोर्ट्समैन। Right. अब दिस आज से कुछ साल पहले अगर मैंने अपने माँ-बाप से ये बात की होती तो बहुत मुश्किल था कैसे। आपको ये समझना है कि उसका पैशन कहाँ है। अगर वो पैशनेटली उस चीज़ को कर सकता है, Hmm. यू हैव टू कीप गाइडिंग देम ऑब्वियसली। Hmm. आप अपना एक्सपीरियंस देते हैं, लेकिन अगर वो अपने पैशन से करने जा रहे हैं, वो जॉब करना चाहते हैं, वो बिज़नेस करना चाहते हैं, वो कुछ भी करना चाहते हैं, ये जो डिसअपॉइंटिंग वाला एलिमेंट आपने बताया ना, ये मेन हर्डल है जो उनको प्रॉब्लम कर रहा है। आजकल जो मैं देख रहा हूँ जो बिल्कुल, प्रॉब्लम, बिल्कुल। वो इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है कि दे थिंक हुँ, कि दिस सक्सेस ईदर इन स्पोर्ट्स, जी। जॉब्स हुँ, और इन बिज़नेस, राइट। इट कम्स ईज़ी। हुँ, इट नेवर कम्स ईज़ी। हुँ, किसी भी इवन फॉर द सोशल आपको कोई इन्फ्लुएंसर भी बनना है, हुँ, इफ यू थिंक यू स्पीक गुड, आपको हुँ, इन्फ्लुएंसर बनना है, यू विल हैव हर्डल्स। हुँ, आप डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो नहीं सकती हो सकता। इसमें, आपके पास कोई चांस ही नहीं है। इफ बिल्कुल। यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन हुँ, योर लाइफ, हुँ, फाइनेंशियल फ्रीडम आपका हो उसमें, जो आपने सेल्फ अगर जी। आपने ऊपर काम कर रहे हो, हुँ, आप चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे जॉब कर रहे हो, क्योंकि यस, जॉब इट्स नॉट लाइक कि जॉब्स क्या अच्छी एनी जॉब्स नहीं है। यस, देयर आर सर्टेनली सो what मेनी they say वेल are गुड पेड fulfilling jobs, जॉब्स। yes. तो आप अगर आपका इंक्लाइन उस तरफ है, डू दैट। And they do give a lot of हाँ, exposure to you, हाँ, which you डू cannot दैट, get यस। otherwise. अदरवाइज़ इस जैसे It's मैंने very कहा कि difficult कि आई आपकी लर्न्ड, डेवलपमेंट या यस, माय जी। डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम द ऑर्गनाइज़ेशंस आई वर्कड फॉर। यस, यस, तो ये सर्टेनली। बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ये लगता है कि ये जो डिसअपॉइंटमेंट वाला फैक्टर है, ऑब्वियसली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस्ड है। जो लोग अपनी सक्सेस शो करते हैं, वो कभी भी अपना फेलियर्स आगे शो नहीं शो कर नहीं रहे होते, करते, बिल्कुल। कि कितने फेलियर्स के बाद ये सक्सेस है। तो वो जो कॉस्मेटिक टाइप की सक्सेस हमें नज़र आ रही है, शायद ये कोई डिसअपॉइंटमेंट है। बट आई एम श्योर ये इवॉल्व हो रही है चीज़, हुँ। एंड दीज़ किड्स विल लर्न, ये इसके साथ इवॉल्व करेंगे। And money becomes a huge question, Mr. Shaji. That back in I mean, when I was interning and I started my first job, the intent was primarily to prove myself. यस। Not that money is, I mean, money is beautiful. Money is a great motivator. But money comes once you develop yourself to नाउ that इट्स extent. मोर ग्रेट मोटिवेटर। Yes. This is true. But it happens not everyone is like you and me. Yes. Maybe money was not a matter for me at Yeah. that time when I started my But there are career. certain students, yes, it depends, yes, certainly. So obviously we have different personalities. Hmm. आपको जो काम करना है, जो आप ये इस काम करने में जो आप काम कर रहे हैं, जो काम मैं कर रहा हूँ, मुझे इसमें मज़ा आता है। Hmm. जो मैं जॉब करता था, Hmm. शायद मुझे उस जॉब में मज़ा नहीं आता था। मैं 100% एफर्ट पुट इन करता था। बिल्कुल। जो जो मज़ा मुझे अपने काम को करने में आ रहा है, Hmm. तो वो उसके लिए भी मैं बेसिकली तो मैं तो उसके लिए Hmm. काम कर रहा था। Hmm. ये जो मनी है वो बाय प्रोडक्ट है Hmm. मेरे ख़्याल में। Hmm. मेन रिक्वायरमेंट ज़रूर है हमारी, Hmm. लेकिन आप अगर पैशन से काम करते हो टुवर्ड्स योर गोल, तो मनी तो बाय प्रोडक्ट है, बिल्कुल उसने उसने आना ही आना है। आना ही बिल्कुल। Thank you so much, Mr. Shaji. It was a pleasure. I think we tried our best to kind of pick up pieces of what you did and try to put it in a brief conversation that is going to be very useful for those students who are in this sort of a dilemma at this point to how to go about introducing their product, their baby, their service to a certain audience, whether it is going to be the right pathway, whether they are going to be a failure. So it's these kind of conversations and discourse actually helps clear some sort of uh, give them a clarity and clear their misconceptions towards the field also. Thank you so very much for inviting me. As you were telling me before that what type of work you and your department is doing for Yes, students, I'm yes, very happy to listen to this. I'm sure other universities are yes, doing that as well, but yes. the involvement you have in it, it's very good to know. And as I told you, in public speaking, this is my first experience that I'm in Yes, front of camera. you, I never and you spoke. did a great job. I'm You so certainly sorry did a if great. I've done No, anything no, wrong. no. So I Certainly, hope, you have done a I hope. fantastic job and speaking freely, candidly, particularly when it comes to a podcast setting. Mhm. I think this is exactly what is the essence of a I hope. podcast. I hope. As candid, and you spoke from the heart, and this is what is of utmost Thank you importance. so very Thank much. you. Thank you. To all the audience, to all the speakers, to all the students who are listening to us, it's very important for you to understand that whether you are coming from the ambit of business
Whether you are an aspiring professional, whether you want to become a leading businessman, whether you are an aspiring business executive, or you wish to become or get into the shoes of becoming an expert and versatile entrepreneur. I hope today's discourse and Mr. Shaji's journey and his insights helped you how to understand how exceptional business acumen that led Wearables reach from a very small scale startup to one of the most thriving retail enterprises. And that too in a brief span of time, for just a couple of years. A decade for any business is apparently nothing for its establishment. And how he is strategically then is constantly delving into positioning and repositioning the brands into new markets now. It's very important to dive deeper into your own expertise, into your own strengths, identifying your gaps, identifying your areas of improvement, and then introducing something that harmonizes with your um, personal ideology, your faith into that product and service, along with research, along with logic, along with rationale and strategy, is something that is eventually going to make you do wonders. And consistent hard work is eventually the name of the game. So, thank you so much for joining us at the CEO Lounge, and I shall see you in the next episode.